Okay, we will start module 3, that is kinematics. Okay, so in first two modules we have discussed with the bodies which are in rest condition. Okay, which are in rest condition. So in this module we will deal with the bodies which are in motion. Okay, or bodies which are in motion. Okay, if we see the syllabus of this module 3 kinematics, so that will we are going to study the type of motion, we are going to study the type of motion, then we are going to study the kinematics of particles. Okay, kinematics of particles, then rectilinear motion, constant and variable acceleration, relative motion, motion under gravity, study of motion diagrams, then angular motion, tangential and radial acceleration, that will be for the curvilinear motion. Okay, then projectile motion, then kinematics of rigid body, concept of ICR, that is instantaneous rate of rotation, concept of relative velocity. So this point we are going to cover in this module, kinematics. So we will start with the first, that will be type of motions. So first type of motion is the linear motion, or that is also called as the rectilinear motion. That simply means whatever path traced by that body is there, that path is a straight line. So simply a car moving on a straight horizontal road, will be the example of a rectilinear motion. A car moving in a straight line. So path traced by that car is a straight line. So that is called as a rectilinear motion. Okay, then second type is the curvilinear motion. So that path traced by that particle or that body is a curve in nature. Okay, path traced by that body is curve in nature. So that is called as curvilinear motion. That simply means a car turning on the road. A car is turning on the road. So whatever path traced by that car, that will be a curve. That will be maybe circular curve, or that may be a parabolic curve. Okay, so that path is a curve. So that is called as curvilinear motion. The next type will be rotational motion. So rotational motion means that bodies get rotated about a fixed reference axis. Okay, like the flywheel, that bodies get rotated about a fixed reference axis. So that will be the rotational motion. Okay, the next type, that will be absolute motion. Absolute motion means what? Whenever we say the motion is there, so that motion will be for a body with reference to some another body. Okay, like when we see a car is moving on the road, so for that car, reference will be that surface, the reference will be the road, and that will be surface of the earth. And for that instant, though earth is not stationary, for some instant we can assume that the earth is steady. So that motion we will treat it as an absolute motion. So when a car is moving on the road, so that we will see that motion is absolute motion, because the reference, that is surface of the earth, that is a steady one. So that is called as the absolute motion. Okay, so whatever reference for that motion of a body is there, that reference is steady one, that motion is called as the absolute motion. Okay, then opposite to this, that will be a relative motion. That means whatever reference is there, that reference will be a moving one. Simple example you can take, like two buses are move in a same direction. Okay, two buses are moving in a same direction with the let's say the same velocity. If two buses are moving in the same direction with same velocity, the passenger sitting in a bus will see passenger sitting in another bus, like that bus is steady one. Okay, आपने भी ये कभी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर सेम वेलोसिटी से दो व्हीकल जा रहे हैं और एक व्हीकल में का पैसेंजर अगर दूसरे व्हीकल को देखता है, तो उसको क्या लगता है कि वो स्टेडी है, या इसके अपोजिट, अगर एक स्टेडी व्हीकल है उसमें कोई पैसेंजर बैठा है और दूसरा व्हीकल आगे जा रहा है, तो हमको लगता है कि हमारा व्हीकल पीछे जा रहा है. सो दैट इज द रिलेटिव मोशन. सो वॉट एवर रेफरेंस इज देयर, दैट रेफरेंस इज मूविंग वन, so that is called as the relative motion. We are also going to solve the न्यूमेरिकल्स ऑफ रिलेटिव मोशन. लाइक रेन का भी एग्जाम्पल है, वो एग्जाम में भी आगे है कि लाइक ट्रेन इज मूविंग और अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन द रोड एंड रेन इज कमिंग. सो रेन वर्टिकल डाउन आ रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि सम एंगल से आ रहा है, वो रेन आ रहा है. सो दैट विल बी रिलेटिव मोशन, कि दैट ट्रेन इज ऑल्सो मूविंग एंड रेन ड्रॉप्स आर ऑल्सो मूविंग. सो दैट इज रिलेटिव मोशन. ओके, उसमें दोनों जो बॉडी है वो मोशन में है. सो रिलेटिव मोशन. द नेक्स्ट टाइप विल बी कंस्टेंट मोशन. कंस्टेंट मोशन का मतलब क्या है? वट एवर पाथ इज देयर, सो दैट पाथ इज अ फिक्स्ड वन. लाइक अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, सो दैट कार इज नॉट गोइंग टू द आउट ऑफ दैट रोड. वो रोड से बाहर नहीं जाने वाली, जितना रोड है
वो रोड के अंदर ही कार मूव होने वाली है, सो दैट इज कॉल्ड अ कंस्टेंट मोशन। ओके, इसका अनदर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एक पाइप है, मान लीजिए एक पाइप है और वो पाइप में से हम बॉल डाल रहे हैं, तो दैट बॉल कहाँ से जाएगा, वो पाइप में से ही जाएगा ना, इधर उधर तो जाएगा नहीं, सो दैट इज अ कंस्टेंट मोशन। दैट मीन्स व्हाटएवर पाथ ट्रेस बाय दैट बॉडी इज दैट पाथ इज अ फिक्स्ड पाथ, सो दैट इज कंस्टेंट मोशन। और इसके अपोजिट बोल सकते हैं हम अनकंस्टेंट मोशन, कि पाथ जो है वो फिक्स नहीं है। लाइक सिंपल एग्जांपल यू कैन टेक लाइक अ काइट जो है, पतंग जो है, पतंग अगर कट गया है, इफ अ काइट इज गेट कट, सो दैट इट विल मूव लाइक दैट, इट्स पाथ इज नॉट फिक्स्ड, उसका पाथ जो है वो फिक्स नहीं रहेगा, तो दैट इज कॉल्ड एज अ अनकंस्टेंट मोशन। ओके, सो इसमें हम जो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने जा रहे हैं वो रहेंगे हमारे कंस्टेंट मोशन के, वो रहेंगे कंस्टेंट मोशन के। अनकंस्टेंट मोशन हम सॉल्व नहीं करने वाले। सो कंस्टेंट मोशन के अंदर हम सॉल्व करेंगे रेक्टिलिनियर में भी हम सॉल्व करेंगे फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एज वेल एज फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। देन कर्विलिनियर के न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं, रोटेशनल मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, एब्सोल्यूट मोशन अभी एक्चुअली हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो एब्सोल्यूट मोशन के होंगे, और जब रिलेटिव मोशन के भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो देन नेक्स्ट विल बी डेफिनेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ओके, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स कॉजिंग द मोशन और विदाउट रेफरेंस टू द फोर्स विच इज रिजल्ट ऑफ दैट मोशन। ठीक है, सो काइनेमेटिक्स मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द बॉडीज without reference to the force which either cause the motion or which may be result of that motion। okay, और इसको ऑफ्टन बोला जाता है कि दैट इज काइनेमेटिक्स को हम जियोमेट्री ऑफ द मोशन भी बोलते हैं। काइनेमेटिक्स ऑल्सो कॉल्ड एज द जियोमेट्री ऑफ द मोशन, बिकॉज यहाँ पे हम जो टर्म्स आने वाले हैं उसमें फोर्स टर्म नहीं रहेगा, उसमें जो टर्म आएंगे दैट विल डिफाइन बाय द जियोमेट्री ऑफ दैट मोशन। मोशन की जियोमेट्री जो है वो डिफाइन करने वाला है। तो इसमें हमको कौन से टर्म आएंगे, तो इसमें हमको आएगा वेलोसिटी, इसमें आएगा डिस्प्लेसमेंट, इसमें आएगा एक्सेलरेशन और इसमें आएगा टाइम। ठीक है, मैं फास्टली ये टर्म डिफाइन कर देता हूँ क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टर्म इन 11th एंड 12th। सो वेलोसिटी, हाउ वी डिफाइन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पहले जीरो टाइम था तो वो जीरो पे था, 10 मिनट बाद 10 मीटर गया। ओके, सो 10 डिवाइडेड बाय 10, सो 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, सो वेलोसिटी, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, हम एक इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन डिराइव करने वाले हैं और उसमें जो टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करेंगे यू से और फाइनल वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वी से। ओके, दैट डिस्प्लेसमेंट हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, सो दैट विल बी वी कैन से द मिनिमम पाथ ट्रेस बाय दैट बॉडी। ओके, इफ बॉडी इज मूविंग लाइक दिस, अगर एक बॉडी यहाँ से यहाँ तक मूव हो रही है, ये उसका एक्चुअल पाथ है, तो वो पाथ पे जो जाएगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और ये जो मिनिमम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, समझिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये जो पॉइंट है इसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेयर डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन एक्सेलरेशन, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। पहले 10 सेकंड्स में वेलोसिटी कितनी थी, उसके बाद के 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी थी, अगर वो वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन वहाँ पे आएगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है दैट मीन्स वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, और टाइम, सो इसके यूनिट भी हम देख लेंगे। वेलोसिटी का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर पर आवर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट आएगा मीटर या फिर किलोमीटर, एक्सेलरेशन का यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जनरली यही आता है, आपको किलोमीटर पर हावर स्क्वायर ऐसा यूनिट ज़्यादातर नहीं दिखेगा, जनरली मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही यूनिट यूज़ किया जाता है। देन टाइम का आएगा सेकंड में या फिर आवर्स में, और इट कैन बी इन डेज ऑल्सो, बट इन दिस वी आर गोइंग टू टाइम लाइक सेकंड्स और आवर्स में ही टाइम रहने वाला है। ठीक है, देन समटाइम्स यू ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट्स। ओके, लाइक क्वेश्चन में दिया होगा कि द वेलोसिटी इज 10 किलोमीटर पर सेकंड और एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो वेलोसिटी दी है किलोमीटर पर आवर में, एक्सेलरेशन दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, so we have to convert that velocity into meter per second. So conversion factor is 5/18. Okay, conversion factor is 5/18. ठीक है, then next we will see the rectilinear motion, that will be for a constant acceleration. So linear motion under the constant acceleration. acceleration जो है यहाँ पे वो आइदर कांस्टेंट है ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और यूनिफॉर्म। देन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो इसमें
तीन इक्वेशन जो है वो हम डिराइव करने वाले हैं लाइक दिस. Okay, so motion with uniform acceleration, that means whatever acceleration is there, that acceleration is uniform, so that a is equal to constant, a is equal to constant. So a जो है acceleration है वो डिफाइन होता है dv by dt, rate of change of velocity with respect to time. Okay, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं dv is equal to a times dt. ओके, dv इज इक्वल टू a टाइम्स dt, और हम सो वी कैन इंटीग्रेट इट. और यहाँ पे वेलोसिटी जो है पता है हमको, u विल बी इनिशियल वेलोसिटी एंड v विल बी फाइनल वेलोसिटी. ओके, a विल बी इनिशियल वेलोसिटी, v विल बी फाइनल वेलोसिटी. और टाइम का जो है तो वो 0 to t आएगा लिमिट, और यहाँ पे लिमिट आएगा इनिशियल u टू फाइनल v. सो इसको अगर हम सॉल्व करते सो दैट विल बी v माइनस यू इज इक्वल टू a इंटू टी, और वी कैन राइट v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. सो दैट विल बी वन ऑफ द इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हमको मिलेगा v इज इक्वल टू, तो बेसिक डेफिनेशन डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, डी एक्स नहीं, हम डी एस यूज़ करने वाले हैं. ds by dt, s is the displacement, सम रेफरेंस बुक डिस्प्लेसमेंट के लिए x भी यूज़ किया गया है, लेकिन हम जो है कैपिटल S यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो ds इज इक्वल टू v टाइम्स dt, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हमने यहाँ पे किया सो v इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस. सो अगेन यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं सो v डी टी. सो यहाँ पे लिमिट ऑफ v जो है यहाँ पे v के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो दैट विल बी u प्लस ए टी, और डी एस का इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल एस होगा तो वो एस ही आएगा. तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t, यहाँ पे v की जगह पे वी कैन राइट इज u प्लस ए इंटू टी डी टी. सो फिर हम इसका इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करते हैं तो दैट विल बी u टी प्लस ओके u इंटू टी प्लस ए टी. सो t का इंटीग्रेशन, सो दैट विल बी टी स्क्वायर बाय 2, लिमिट विल बी 0 टू t. सो पुटिंग द लिमिट्स वी गेट इक्वेशन एज s इज इक्वल टू u टी प्लस ओके s इज इक्वल टू u प्लस हाफ a into t square. Okay, so that will become our second equation. Okay, remember this equation very carefully. s is equal to ut plus half a t square. अगर आप उसको याद नहीं रख सकते तो सिंपली यू कैन डिराइव इट. ओके, उसको हम डिराइव भी कर सकते हैं. ठीक है, और नेक्स्ट इक्वेशन जो है हमारा वो हमको ऐसा मिलेगा, सो दैट a जो है हमारा एक्सेलरेशन जो है, सो दैट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. a is equal to dv by dt. ओके, a is equal to dv by dt. अब अगर हम इस इक्वेशन को ds से मल्टीप्लाई और ds से डिवाइड करते हैं तो दिस ds by dt, सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सो दैट विल बी dv by ds इंटू ds by dt. अगेन ये ds by dt है वो v हो जाएगा, सो a विल बी इक्वल टू v टाइम्स dv by ds. इसको हम ऐसा लग सकते हैं, सो a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी. a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी. ओके, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, और फिर इसको आगे फिर हम सॉल्व कर सकते हैं. उसको हम वी कैन सॉल्व लाइक दिस. सो वी कैन इंटीग्रेट इट. सो a इंटू डी एस इज इक्वल टू v इंटू डी वी. यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है. सो इंटीग्रेशन लेते समय यहाँ पे s 0 टू s लिमिट आएगा. a एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, और v के लिए यहाँ पे u टू v. ओके, इनिशियल u टू फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी. सो a कांस्टेंट 0 टू s ds का इंटीग्रेशन s ही आएगा. सो a इंटू एस इज इक्वल टू यहाँ पे v डी का इंटीग्रेशन आएगा v स्क्वायर बाई 2
to the limits u to v. Okay, so putting the limits, so we can write a into s is equal to v square minus u square, okay, divided by 2. So हम इसको लिख सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, सो दैट वी स्क्वायर is equal to, we can write like v square is equal to u square plus 2as, v square equal to u square plus 2as. So these three equations are very important. We are okay. So these three equations of motion are there. So ये है इक्वेशन ऑफ मोशन, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन ऑफ मोशन व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स. ठीक है, हमको देखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है और इन तीनों में से कौन से इक्वेशन यूज़ करके हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर और इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. कोई भी डिफ़िकल्टी आपको होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे डाल सकते हैं, या कोई न्यूमेरिकल है जो आप ट्राई कर रहे हो और आपको नहीं सॉल्व करने आ रहा है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट न्यूमेरिकल एंड पोस्ट द वीडियो ऑफ इट. ओके, थैंक यू.